Hello everyone. So a lot of students wanted me to give out a strategy for CMAT that works very well. So I have a strategy for CMAT which I have gotten by talking to the past CMAT toppers, the people who are at JBIMS right now, and also a little bit of integrating what already my strategy is for CET and the other exams into the CMAT exam based on its exam structure. So let's discuss the entire strategy. बिफोर दैट गाइज दिस वीडियो ऑनेस्टली टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट क्योंकि बहुत कुछ देखना, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ी. जस्ट यू गाइज ड्रॉपिंग अ लाइक ऑन द वीडियो विल रियली हेल्प. जस्ट लाइक इन कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट पोस्ट अ थैंक यू. इफ नॉट तो वेल बोल दो कि नहीं हेल्पफुल हुआ, वॉट एवर इट इज. सो या इट रियली हेल्प. गिव मी अ फीडबैक ऑन द वीडियो. ओके, चल लेट्स स्टार्ट. सो स्ट्रैटेजी फॉर सीमैट. सबसे पहली बात तो तुम्हें ये तो ऑलरेडी पता है दैट सीमैट में 5 सेक्शंस है. 5 सेक्शंस के लिए तुम्हें 3 घंटे मिलते हैं. That is an amazing amount of time. So if you even consider the on an average कि तुम्हें कितना टाइम पर क्वेश्चन मिलता है, you can just say that 180 minutes है and 100 questions है. 1.8 minutes per question. 1.8 minutes per question is 1 minute 48 seconds, and that is 108 seconds per question. But this is if you're aiming to get a 400. ना तो पॉइंट इज 400 किसी को आया नहीं है अब तक, ना ही किसी को आएगा, बिकॉज किसी को सारा जीके नहीं आता, किसी को सारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन नहीं आएगा. कोई मिस्टेक क्वांट्स में हो जाएगी, कोई मिस्टेक एलआर में, और एक दो तुम्हें वोकैबुलरी के वर्ड शायद नहीं आएंगे. ऑन एन एवरेज जेबीआईएमएस जाने के लिए यू नीड अ स्कोर ऑफ 340. 340 is the score of the normally 100 percentiler. 340 से 345 तक is the 100 percentiler. Okay. So if you are anything above a 335, you can consider your chances of getting into JBIMS as pretty good. But how do you calculate that 335 कैसे आएगा? Now, the point is, guys, इसमें तुम्हें strategy लगानी पड़ेगी purely because there is negative marking. Now, this strategy will work for CMAT, CAT, all the exams which basically have a negative marking. उन सबके लिए ये strategy use करेंगे. मैं सबके लिए videos बना दूंगा as the exams come ahead. Okay? चल. This is an attempt time score matrix. What does it very simply say? डरो मत. It's actually very easy to understand. I'll explain it entirely. ये देखो. This says कि तुमने कितने correct question solve किए. This side says that तुम्हें कितने questions किए जो तुमने गलत किए. तो समझो अगर मैंने 60 सही और 20 गलत किए तो I attempted 80 questions out of the 100 questions in CMAT. Fine? Nobody says that तुम्हें सारे के सारे questions attempt करना है, because the good part is for a question that you have not attempted. अगर मुझे कोई question नहीं आता, अगर मैं उसको attempt ना करूं, I will get 0 marks for it. पर अगर मैंने attempt किया and गलत हुआ तो I will get -1. तो मेरी मेहनत के मार्क्स भी चले जाएंगे. So that is why be very careful that you do not attempt a question that you don't know how to solve. Always only solve the questions which you know how to solve. How does that work? Now I recommend that 340 का स्कोर हम पकड़ रहे हैं. 340 का स्कोर 340 से 345. So I will say you only consider these two. This is what I would say, that if I were your teacher and if I were the person who's guiding you entirely, I'll say 340 या 350 का स्कोर का टारगेट रखो, in which you will get 127 seconds per question. That's an amazing time. And what does that mean? अगर मैं 85 क्वेश्चन सॉल्व करूं, 85 के 85 सही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सही. और क्योंकि अगर मैं एक भी गलत करने लगा, इफ माय अटेम्प्ट्स गो अबव 85 एंड गलत होने लगे, देन आई फॉर एवरी 5 क्वेश्चंस रॉन्ग आई विल हैव 335 मार्क्स. बट अगर मैं 85 क्वेश्चंस वैसा कर सिर्फ 85 ही अटेम्प्ट करूं, मुझे पर क्वेश्चन 127 सेकंड्स, 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम मिलता है. नाउ अंडरस्टैंड, सीमैट का डिफिकल्टी लेवल इज जस्ट एज मच एज सीईटी, बट सीमैट में तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा मिलता है. तो जहां पे सीईटी में यू गेट 45 सेकंड्स पर क्वेश्चन, 45 seconds, CMAT में you get 2 minutes. That is 120 seconds per question. So consider that तुम्हें कितना ज्यादा टाइम मिल रहा है. You are getting almost 3 times the time. Like जितने में तुम सीईटी का एक सम करते हो, उतना ही टाइम तुम्हें CMAT का एक सम करने के लिए उसका ट्रिपल टाइम मिलता है. So that is an amazing thing. You can have a very high accuracy, and that is why CMAT as opposed to CET is not a speed game. It is a game of accuracy. तुम जो करो सही करके आओ, गलत चीजें सॉल्व ही मत करो. If you are doubtful, मत सॉल्व करो. Why? Because as you see, देखो,
जब हम ये टेबल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो तुम्हारा स्कोर बढ़ता जाएगा, पर टाइम बढ़ता, स्कोर एंड टाइम दोनों बढ़ते जाएंगे। बट अगर तुम टेबल में ऐसे जाओगे, तुम्हारा वैसे स्कोर तो बढ़ेगा, बट तुम्हारा साथ में टाइम पर क्वेश्चन डिक्रीज होता जाएगा। नाउ यू हैव टू फिगर आउट तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है। एंड व्हेन आई से 2 minutes पर क्वेश्चन, डज एवरी क्वेश्चन रिक्वायर 2 minutes? जीमैट में, सॉरी जीके में, यू डू नॉट हैव टू टेक 2 minutes पर क्वेश्चन, बिकॉज तुम्हें या तो वो क्वेश्चन आता है या तो तुम्हें नहीं आता। तुम्हें या तो पता है सतलज रिवर कौन से स्टेट में, या फिर तुम्हें नहीं पता। तुम्हें या तो पता है नर्मदा और गंगा कहाँ मिलते हैं, या तुम्हें नहीं पता। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। उसमें ऐसा नहीं था तुम 5 ऑप्शंस देखोगे, उसमें से डिसाइड करोगे अरे यार ये बनारस तो नहीं है, नहीं पटना तो नहीं है, नहीं यूपी में किधर नहीं है। ऐसे तो नहीं होगा। यू विल हैव टू जस्ट आंसर इफ यू नो इट, इफ नॉट तो जाने दो। So my recommendation now for the strategy here, that how many questions do you solve out of each and every section, and I will suggest basis this case and this case. तो ये वाला केस बोलता हूँ और ये वाला केस बोलता हूँ, ओके। ये दो स्ट्रैटेजीज मैं तुम्हें बताऊंगा। अब देखो, वेट अ मिनट। सॉरी, तो इसमें हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। आई विल सजेस्ट दैट यू गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन बोथ केसेस जितना टाइम हो सके उतना पहले डिवाइड करो। समझो, एलआर के कितने क्वेश्चंस है? एलआर के 20, वैसे सबके 20-20 है। बट कैलकुलेट व्हाट इज द पर क्वेश्चन टाइम दैट यू विल टेक। जीके में ऑन एन एवरेज फॉर द 20 क्वेश्चंस, आई एम सेइंग दैट सारे के सारे मत सॉल्व करो। सॉल्व 60 क्वेश्चंस ऑफ एलआर, वीए एंड क्यूए। सो दैट इज 20 and 20, 60 हो गए। यू नीड हाउ मेनी मोर? आइदर 25 और 30 मोर। 25 अगर एक्स्ट्रा सॉल्व करने तो हम ऐसे करेंगे। आउट ऑफ जीके आई रिकमेंड दैट यू सॉल्व अबाउट 10 क्वेश्चंस ओनली। आधे छोड़ दो, और मैक्स 7 से 8 क्वेश्चंस करोगे तो भी ठीक है। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन में सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर केस बेस्ड। केस बेस्ड क्वेश्चन, जनरल नॉलेज भी छोड़ दो, सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन ही अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 आ जाते हैं, जिसमें तुम्हें एक केस दिया होगा एंड यू हैव टू डिसाइड। इट इज वेरी मच लाइक द जैट का डिसीजन मेकिंग। सो दिस इज लाइक डिसीजन मेकिंग। तुम्हें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके वो केस के बेसिस पे डिसीजन लेना है। बट यहाँ पे इफ यू सी, एलआर को पर क्वेश्चन तुम्हें टाइम लग जाएगा। समझो अगर तुम्हें पर क्वेश्चन 2-2 मिनट लग गए। वीए में पर क्वेश्चन 2-2 मिनट नहीं लगता, बिकॉज वोकैबलरी ही 6-7 आ जाते हैं। उसके ऊपर से जो बाकी क्वेश्चन है वोकैबलरी को टाइम नहीं, बाकी सबको थोड़ा टाइम देके ऑन एन एवरेज यहाँ पे 1.5 minutes पर क्वेश्चन लगेगा। वी हैव 40 minutes, वी हैव 30 minutes, एंड क्यूए में हर एक क्वेश्चन, समझो तुम्हारा क्यूए स्लो है तो 2 मिनट दे दो एंड यू हैव 40 minutes। तो यू आर डन विथ 110 minutes। 110 minutes ओवर। ये सिर्फ किस में गए? एलआर, वीए, क्यूए। नाउ इन जीके, बिकॉज तुम्हें वैसे ही क्वेश्चन सारे नहीं आते, तो जो क्वेश्चन नहीं आता उसको देख के भी फायदा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आइडिया नहीं है, जाने दो। आई एम सेइंग 7 से 8 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को 1-1 मिनट दे दो या 1.5-1.5 मिनट दे दो, तो भी तुम्हें कितना टाइम मिलेगा? यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 10 अटेम्प्ट्स। 10 अटेम्प्ट करो, 15-15 मिनट लग जाएंगे तुम्हें। सो 15 minutes। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन जिसमें केस सॉल्व करना है, दैट इज वेर यू टेक टाइम। बिकॉज तुम्हारे पास देखो टाइम कितना बचा है, 125 minutes हुए हैं। सो दिस प्लस जीके, तो द एंटायर टाइम दैट यू गेट फॉर आई एंड ई, दैट इज योर फ्री टाइम। उसमें मैं बोलता हूं दैट तुम ले लो, तुम्हें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? इसमें 7-8, इसमें 9 से 10। चलो आई विल से दैट अगर तुम्हें इसमें चाहिए तो तुम सॉल्व करो
13 क्वेश्चंस टू मेक अ 20-25 का परफेक्ट. 13-15 वैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लो. हाउ मेनी क्वेश्चंस विल यू गेट हियर? इफ यू सॉल्व 14 of them right, 14 plus 8 gives you 22. You have 22 right. यही पे हो गया. अब this is when I'm saying that you are working on an absolutely easy mode. तुम टफ में जा ही नहीं रहो, तुम बहुत इजी मोड पे खेल रहे हो गेम. तो 22, you are at 82 questions and your score becomes 82 into 4, it is 328. ये हो गया तुम्हारा सिडनम क्लियर. ओके. नाउ फॉर जेबी व्हाट you'll have to do, again entrepreneurship and innovation में I suggest इसमें से 16 राइट करो एंड जीके में से करंट अफेयर्स सारे के सारे करके जाओ, दैट इज 4 to 5 मार्क्स. एंड जो भी स्टैटिक जीके है उसमें से हिस्टोरिकल जीके एंड बिजनेस रिलेटेड जीके, ये दो चीजें प्रॉपर्ली करके जाओ. तो इफ यू हैव डन दैट देन यू कैन वेरी इजिली स्कोर अबाउट 13 to 14 मार्क्स. चलो 13-14 नहीं तो 12 मार्क्स तो लेके ही आओगे. सो 12 and 16 gives you 28. इसमें 28 ऐड करो, you have 88 right questions. तुम्हारे 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए, even if you have 2 questions wrong, तुमने 90 अटेम्प्ट किए तो भी 88 into 4 gives you 320. Sorry, 88 into 4, 320 plus 32, 352 minus 2 marks. Okay, so you are still at 350 का score. That will be your total score and that is almost a guarantee JBIMS admission. So here guys, you must understand entrepreneurship and innovation को बहुत ज़्यादा time देना है. You have 55 minutes for entrepreneurship and innovation. This is a section where you will spend the most amount of time. इसमें ज़्यादा टाइम मत डालना बिकॉज इसमें सारे केसेस सही सॉल्व करके आने हैं एंड कुछ भी टफ नहीं है बट एकदम ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, समझ के सॉल्व करना पड़ेगा. So guys, this is how I would strategize my CMAT का exam. This is based on all the conversations that I've had with my CMAT toppers. We also have a entire video, ऐसा 1-1.5 घंटे का जितना पूरा वीडियो है CMAT toppers के साथ, उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे ऊपर डाल दूंगा. तुम्हें वीडियो के इधर ऊपर ऐसे कॉर्नर में तुम्हें दिख जाएगा वो लिंक. So you can definitely see that video and it will really help you. Okay? उसमें जीके कैसे पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन कैसे करना है, उन सब के बारे में सीमैट टॉपर्स ने खुद बात की है. बट इफ यू लाइक दिस स्ट्रैटेजी देन गाइस प्लीज जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो दैट तुम्हें और क्या चाहिए एंड प्लीज जस्ट लाइक द वीडियो. ओके, बाय एवरीवन, आई होप दिस वाज हेल्पफुल.